تو یہ ان الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، استثناء، یعنی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہرگز نہیں، مگر یا سوا، اور جو ہے نا خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو یہ اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ تو وہ معنی پھر ہم عبارت کے اعتبار سے پٹ کرتے رہیں گے کہ یہاں پہ کس معنی کو لانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں ہاں، آگے پڑھیں۔ جی، محسن صاحب آپ پڑھیں، سروزہ لگا کے ہیں، برکت ہو جائے گی کلاس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بفعل، اور وہ 6 ہیں: انا و انا و کأنا، ولیکن، ولیت، ولعل۔ ان حروف کو ایک اسم چاہیے منصوب اور خبر چاہیے مرفوع، جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن قائم زیدن، تو ان کا اسم کہیں گے اور قائم کو ان کی خبر۔ زیدن کو، ان زیدن قائم، یہ ایک جملہ ہے، اس میں زیدن کو ان کا اسم کہیں گے اور قائم کو ان کی خبر۔ تو جان لے کہ انا و انا حروف تحقیق ہیں اور کأن حروف تشبیہ ہے، اور لاکن حرف استدراک ہے، اور لیتا حرف تمنے، اور لعل حرف ترجی ہے۔ اب ان کی ترکیب کرے استاد ساتھی جی، کوئی انا۔ جی جی استدراک جی، کا مطلب یہاں کیا آئے گا استاد جی؟ وہ آ رہا ہے نا، ترکیب میں آپ کو میں بتاتا ہوں بیٹا، جب ترکیب شروع کریں گے نا، جی، تو انا کی کیا ترکیب آئے گی بھائی؟ انا، ان بے شک میں اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق کے لیے، پکی بات ہے۔ ہوں ہوں، یہ ترکیب کریں، اس کا ترجمہ بھی کریں۔ ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ ہوں تو ہوں، ہاں، تو کیا بنے ان گا؟ جو ہے وہ بے شک کے زیدن معنی اسم میں آئے ہے، گا؟ اس میں کہ ان بے ہاں شک، جی، ہاں ترجمہ اور کریں اب اس کا۔ زیدن جو ہے وہ بے شک زید کھڑا ہے، اور ہاں ہاں، زیدن جو ہے نا یہ اس میں مسند ہے، مسند نہیں، ہے۔ ہاں مسند لا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ انا کا جو ہے نا اسم بن رہا ہے۔ جی، یہ اسم ہے، اور قائم جو ہے نا یہ اس کا فعل ہے، اس کی خبر ہے، ہاں، ترجمہ ان کیا کی بنے گا؟ خبر ہے۔ تو ترجمہ کیا بن گیا؟ تو یہ بے شک زید کھڑا ہے۔ ہاں جی، چلو ماشاء اللہ، یہ تو آسان ہو گیا۔ آگے اس کی ترکیب کریں، اگلے کی جی، بھی، آپ اگلے کیا نام ہے؟ کس نظام کی؟ الدین صاحب آپ؟ ہم، ہم، ہاں حضرت اس میں ان زیدن جی، قائمن، ان جو حروف مشبہ بفعل، زیدن ہاں ان کا اسم اور قائمن خبر۔ ہاں تو ہاں حروف مشبہ فعل اپنے ہاں فائل، زیدن اسم جو اس کا فائل بھی بنے گا، فعل اپنے فائل کے ان ہم، زیدن کے ساتھ مل کے یہ مبتدا بن گیا، اور قائمن اس کی خبر بن گئی، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے اسمیہ خبریہ بنا۔ دوبارہ کریں، دوبارہ کریں آپ، دوبارہ اس کی ترکیب۔ آ، حضرت ان جو ہے اگر مشبہ بفعل ہے تو پھر فعل ابتدا میں اگر آ گیا تو پھر آگے اسم کے ساتھ کیسے فائل بن جائے گا زید؟ نہیں نہیں یہ اصل آپ نا ان حروف کے بارے میں، آپ ان کو بارے میں نا آپ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ حروف ہے تو کیا نام ہے،
ہے تو یہ ہیں اسم یعنی کہ حرف ہیں یہ حروف، لیکن داخل ہوتے ہیں اسم پر اور مشابہ بالفعل ہوتے ہیں، یعنی یہ عمل فعل والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل فعل صحیح. والا کرتے ہیں، باقی یہ جو ہے کیا نام ہے نا، جملہ اسمیہ نہیں بنے گا یہ، ٹھیک ہے، جو چلیے. اب میں آپ کو آ، بتاتا ہوں. ہاں، جی. اچھا، کچھ اور دیکھ رہا تھا یہاں پہ نا آپ حضرات کے لیے. اچھا، حروف مشبہ بالفعل اور وہ چھ ہیں، انا و انا و کانا لیکن لیت لعل انا حروف. انہوں نے آگے نا ان کا صرف ہمیں نا استعمال بتایا یہاں پہ نا، کہ یہ حروف اسم جو ہے نا، ان حروف کے ایک اسم چاہیے منصوب اور خبر چاہیے مرفوع، ٹھیک ہے. ان زیدن قائم، ٹھیک ہے، تو زید ان کو انہوں نے انا کا اسم کہیں گے اور قائمن کی خبر کہیں گے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ترکیب ہوگی، ایک ترکیب آپ یہ کر دیں، ٹھیک ہے، انا زیدن ضرب عمرن، انا زیدن ضرب عمرن، ٹھیک ہے. تو اب انا حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، زیدن کیا گیا انا کا اسم، اور جو ہے ضربہ فعل ہوا ضمیر فاعل جو زیاد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور امرن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور کیا نام ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدن اسم کے لیے خبر، زیدن اسم اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ کیا بھی ہو گیا ابھی میں روٹی ابھی کھا کے آیا. ہے. جملہ اسمیہ ہوگا استاد جی. جملہ اس میں شبہ فعل ہو گیا. جی، جی استاد آگے جی. ہے اگر جیسے انہوں نے کہا کہ اس اسم کو چاہیے ان حروف کو ایک اسم چاہیے منصوب اور خبر چاہیے مرفوع، تو جو خبر تھی جی اس کو ہم نے ذرا امرن کر دیا، تو اس میں تو وہ مرفوع تو نہیں ہوا وہ خبر جو ہے. نہیں، جملہ تو بن گیا نا. میں نے جیسے لکھا ہے نا کہ خبر چاہیے مرفوع، تو جو ہاں، تو جملہ ذرا کیا ہوتا ہے؟ امرن. جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کے پہ کیا حکم لگائیں گے ہم؟ جس میں اسم فعل اور حرف ہو. ہاں، ٹھیک ہے نا، اصل میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. انا زید ضرب امر، بے شک کہ زید نے امر کو مارا ہے، ٹھیک ہے. تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو خبر جو ہم نے یہ پڑھا تھا نا، مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. زید قائم، زید کھڑا ہے، تو جیسے زید قائم کی جو قائم زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، مبتدا کو بھی خبر چاہیے مرفوع، ٹھیک ہے، تو قائمن بھی مرفوع ہے. اور زید ضربہ امرن، زید نے امر کو مارا ہے، تو یہ پورا جملہ ضربہ امرن، یہ بھی پورا جملہ ہو کے یہ بھی زید کی کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے نا. جی. عثمان نے سمجھ میں آئی؟ تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ دیکھو، ان کے ساتھ یہ شبہ فعل ہے، یعنی ایک طرح یہ فعل کے مشابہ ہے اور ایک طرح یہ اسم کے مشابہ ہے. یہ شبہ فعل ہے، شبہ مشابہ ہے اس کے اندر، فعل کی بھی مشابت ہے اور اسم کی مشابت ہے، اور یہ داخل ہو رہا ہے اسم کے اوپر، ٹھیک ہے. تو پورا جملہ جو ہوتا ہے نا وہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ہم نے زید ضرب امرن میں جو ہے نا ضرب امرن کو زید کی خبر بنا دیا، تو یہاں اگر بالفرض ہم انا ہٹا دیتے ہیں، انا کو ہٹا دیں، تو اس کو اگر دیکھیں گے تو پھر یہ کہ ہمیں زید مبتدا بنے گا، جیسے انہوں نے نظام الدین نے فرمایا کہ قائم اس کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے. ابھی سر اس صورت حال میں پھر ان زیدن اس میں کہیں گے کہ حروف مشبہ اس کا اسم زید اور قائم خبر مل کے تو اس میں خبریہ بنے گا، کیسے اس کو ترکیب کریں گے؟ ہاں، اصل میں نا میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، میں اسے پڑھانے کے چکروں میں نہیں تھا، میں نے تکرار کروانا تھا، لیکن ساتھیوں کی رائے ہے کہ پڑھانا ہے، تو یہ صحیح ہوگا صحیح. شبہ فعل ہوگا. میں نے آج تکرار اچھا اجرا حضرت کروانا تھا. ایک اور سوال بھی جی. تھا کہ آج وہ پچھلے لیکچر میں بات چل رہی تھی، میں بیچ میں بات چیت میں نہیں ہے، میں خاموش ہی رہا، تو بات ہو رہی تھی کہ مرکب جو ہے وہ جملہ بھی کہلاتا ہے، اور ہم نے پڑھا بھی ہے پیچھے، لیکن مرکب تو ہوں مضاف اور مضاف سے لے کے دو الفاظ جب مل گئے تو وہ بھی مرکب ہے، لیکن وہ پورا جملہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آگے بات چیت جو ہے ڈیفیشنٹ ہے، تو ہوں پھر اس کو پورا جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرکب کو اپنے پورا جملہ ہی کہیں گے؟
नहीं कि ये किस सबक में हुई ये बात है कि मुरक्कब पूरा जुमला होता है? ये वो पहले जो अरबी का सबक था उसके अंदर पे थोड़ा सा आखिर में नहमी से थोड़ा रिलेटेड हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। तो वैसे भी हमने अच्छा यार वो नहवी के इब्तिदा में पढ़ा है कि मुरक्कब जो है वो मतलब उसको जुमला भी कहा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जुमला तो मुकम्मल होना चाहिए, तो दो अल्फाज मुफरद ना हो लेकिन दो अल्फाज मिल गए तो वो तो मुरक्कब हो गए, लेकिन वो पूरा जुमला तो नहीं हो सकते। हो सकता है उसके अंदर नहीं आप ही का जो। हाँ। अच्छा अब जी ना वो ना अब मैं उस्ताद जी ने अपने एतबार से बात किया, मैं अपने एतबार से बात करूँ शायद कुछ साथी भी फिर वो अजीब सी हो जाती बात। मैं आपसे याद कर रहा हूँ देखना, नाहमीर में हमने शुरू में ये पढ़ा था कि दो जब दो लफ्ज मिल जाएं, दो कलमे मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब बनता है ना, जी हजरत। जुमला बनता है। हमने शुरू में किया था मुरक्कब बनता है ना, दो जुमले मिलाकर, ठीक है। जी जी दो जुमले को मिलाकर मुरक्कब मुरक्कब बन गया, दो जुमले या दो कलमों को। यानी मिसाल के तौर गुलाम मुजैदिन, गुलाम एक कलमा हो गया, जैदिन दूसरा कलमा हो गया, गुलाम मुजैदिन ये मुरक्कब बन गया, ठीक है। जी जी ठीक है। हजरत। आगे अब है मुरक्कब दो किस्म के जारा। होते हैं। मुरक्कब मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद, ठीक है। जी वो जी। बात ठीक है, लेकिन जाराबा जैदुन अमरन ये भी पूरा, ये भी मुरक्कब पूरा जुमला ये पूरा जुमला ये भी मुरक्कब है, ठीक है। जी सही है। जी जी। हाँ, तो सबक में ऐसे ही पढ़ाया होगा उस्ताद जी ने। तो गुलाम और जैदन को पूरा जुमला तो कहेंगे उसको हजरत? नहीं, उसको जुमला नहीं कि उसको हम मुरक्कब कहेंगे। मुरक्कब मुरक्कब यानी जी मुरक्कब से मुराद मुरक्कब होता है कहेंगे कि लेकिन वो जुमला नहीं कहलाएगा। जी जी। ये जुमला नहीं कह सकते, हम उसको जुमला नहीं कह सकते, लेकिन जुमले को भी हम मुरक्कब कह सकते हैं, ठीक है। जी 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 बिल्कुल ये सही है। हाँ ठीक है, चलो सही है। अच्छा जलील कुरैशी साहब माशाल्लाह है क्लास में? जी जी हाजिर हाजिर हाजिर। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे बड़े हैं यार। असल में ना एक तो नहीं, आज मेरा पढ़ाने का भी मूड नहीं है, सीधी बात मैं आपको बताऊं, और कोई मैंने बात मुताला भी नहीं बिल्कुल किया। नहीं। मूड के मैंने मुताबिक काम होना चाहिए। हाँ, मैंने मुताला भी नहीं किया, इसलिए मैंने वो आगे पीछे हो रहा हूँ। नहीं तो असल में आगे दोहराई थोड़ी सी जो है ना। हाँ यही ना, आज आज मुझे तकरीबन 8-10 साथियों ने यही मैसेज किया कि उस्ताद जी थोड़ी दोहराई करवाएं पीछे से। हाँ, मैंने इसलिए सबक करना, मैंने फिर मुताला किया ही नहीं। अब मैं पढ़ाऊंगा ना वो फिर बातें गड़बड़ हो जाएंगी, तो फिर साथी महसूस करेंगे पता नहीं उस्ताद जी क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं बस। अच्छा ना, मैं आपसे एक बात करता हूँ, अब जलील कुरैशी साहब आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। जी जी हाजिर। अच्छा, आपका नाम क्या है? जलील मोहम्मद जलील कुरैशी। मोहम्मद जलील कुरैशी, मोहम्मद जलील कुरैशी। इसके अलावा जो भी होंगे ना वो बाद में देख लेना। कादिमा इलल इस्लामाबाद, कादिमा इलल इस्लामाबाद, ठीक है। एक ये जुमला है, जी एक जुमला है जी कादिमा मोहम्मद जलील कुरैशी इलल इस्लामाबाद, ठीक है। अब ये दोनों जुमले हैं, इन दोनों जुमलों को आप देखें, ठीक है। इसमें भी देखें कि जी। पहले इसम कौन है, फेल कौन है, और हर्फ कौन है। कादिमा, पहला देखिए, मोहम्मद जलील कुरैशी कादिमा इलल इस्लामाबाद। बात था। हाँ जी जी। हाँ कादिमा जी, इसमें मोहम्मद जलील कुरैशी कादिमा इस्लामाबाद। इलल इस्लामाबाद। जी जी। हाँ, मुश्किल हो गया है, आसान कर दूं आपको? मतलब बताऊं मैं? रुक जाए थोड़ा, चलो मैं आपसे और पूछता हूँ, इनसे वही हल करवाएंगे, आपसे मैं और पूछता हूँ, ठीक है। जी जी। ठीक है। बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल निजामुद्दीन, मुश्किल। निजामुद निजामुद्दीन शरब्त शाया, निजामुद्दीन शारिबा शाया, निजामुद्दीन शारिबा शाया, एक जुमला। दूसरा स- जुमला है शारिबा निजामुद्दीन शाया, शाह कहते हैं, शाया कहते हैं चाय को, ठीक है। जी सही है। या लबनन कहते हैं, पहला चाय को छोड़े लबनन। निजाम। जी हजरत निजामुद्दीन निजामुद्दीन, शरब शाया। जी। हाँ इस ये इसकी, इसमिया खबरिया हुआ, जबकि शारिब निजाम निजामुद्दीन शाया ये फैलिया खबरिया हुआ। अच्छा इसकी तरकीब करेंगे आप? हजरत निजामुद्दीन मुब्तदा, इसम भी है मुब्तदा भी है, और शरबा हाँ जी। फेल,
उसके अंदर जो हाँ है वो फाइल फाइल मुस्ततर है, हाँ। जो है, और शाया जो है वो उस मफूल भी, तो फेल माशा अपने फाइल माशा। फेल अपने मफूल भी से मिलके ये खबर बना, और ये मुब्तदा के साथ, अब मुब्तदा के लिए खबर बना, मुब्तदा खबर मिलके वो इसमिया खबरिया बना। जबकि शरिबा अगर अच्छा। पहले आता है तो ये फेल, और हाँ निज़ामुद्दीन उसका फाइल, और हाँ। आगे शाया जो है वो उसका मफूल भी, तो फेल अपने फाइल और मफूल भी के साथ मिलके फेलिया खबरिया हुआ। अच्छा, अब ये जुमला मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद है? हज़फ मुरक्कब मुफीद है। अच्छा, इसमें आप बताएं कि निजामुद्दीन मुफरद है मुरक्कब है? हज़रत निज़ामुद्दीन मुरक्कब है। अच्छा, नहीं, अगर इसको अलम नाम मुराद ले ले एक आदमी का, जी। आ, अगर जी अगर इसको मैं जी जी। सिर्फ सिर्फ आपका नाम मुराद है, इससे इससे कोई और मुराद नहीं, दीन का निज़ाम नहीं मुराद नहीं है, यहाँ सिर्फ निजामुद्दीन एक अलम मुराद है, नाम मुराद है, तो फिर क्या होगा ये? फिर यानी तो सिर्फ ये मुफरत बन जाएगा। मुफरत मुफरद बन होगा जाए, फिर। जज़ाक। हाँ, फिर मुफरत, अल्लाह आपको खुश हो, अल्लाह आपसे राजी हो। ठीक है। अच्छा। अच्छा है मोहसिन महमूद साहब, मोहसिन महमूद। अच्छा, ये जी जी बताएं कि सही। इसमें जो है ना, हाँ, शारिबा शाया, तो ये क्या नाम है, शारिबा के क्या है? ये फेल है, फेल माजी है। फेल माजी है, इसमें फेल की अलामत क्या है? इसमें तो कोई अलामत नहीं है। इसमें हाँ जमाना पाया ये जा रहा इसमें, हाँ फाइल ये मुजक्कर ये गायब क्या है? ये एक साथी बोल रहा है, जो ये साथी ने जवाब दिए जमाने वाले ने। ठीक है, क्या इसमें जमाना पाया जा रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें हरफ जर कौन सा है अभी, हरफ जार कौन है? हरफ हरफ जार है इसमें? नहीं, इसमें अल्फिया नहीं है। अच्छा जी, हरफ जार नहीं है इसके अंदर। ये, अच्छा। हाँ। अच्छा, आगे है खुरम जमान, खुरम जमान, खुरम जमान से आसान सवाल करेंगे जनाब आपसे। अच्छा, जाराबा जईदुन बिल आसा, आसा कहते हैं डंडे को, ठीक है, डंडा, डंडा। तो इसमें बताएं कि कौन मुफरद है और कौन मुरक्कब है, क्या और इसकी क्या तरकीब बन रही है, सारी बताएं आप। वो फेल है और हाँ सब है, और हाँ हाँ। जी, हिम्मत करे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा। तो ये फेलिया खबरिया जुमला बनता है इससे। हाँ। ज्यादा अच्छा, बता सुने दी। इसको दोबारा, दोबारा सुने। जाराबा फेल है मुस्नद है, ठीक है। अब क्या है, जैदुन क्या है, फाइल है, मुस्नद इले है, ठीक है। बा हरफ जर है, अल असा मजरूर है, और इसम है क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो रहा है एक, और दूसरा ये है कि ये क्या नाम है, बा हरफ जर इसके ऊपर दाखिल हो रहा है, ये इसकी अलामत है इसम की, ठीक है। तो हम अब, और जैद इसम है, उसके आखिर में तनवीन है, ठीक हो गया। अब इसका तर्जुमा ये, जैदुन फाइल, ज़ारबा फेल, बा हरफ जर, अल असा मजरूर, जार मजरूर के साथ मिलकर फेल के मुतालिक फेल अपने फाइल, और वो मुताल्लिक़ के साथ मेरे को जुमला फेलिया खबरिया हुआ, ठीक है। अच्छा, आगे आगे कौन है जी? आगे है हजरत इस पे मोहम्मद एक उसामा। सवाल था। जी जी एक पूछे। सवाल था, जो हम ज़रबा कह रहे हैं, पहले भी हमने इस पर डिस्कशन हुई कि जो किताब के अंदर फेल की अलामत दी गई हैं, तो ज़रबा के अंदर कौन सी अलामत है? हाँ, ज़राबा को, ज़राबा के इसके अंदर जो है ना, माजी के अंदर तो यही ज़माना ही पाया जाता है, ठीक है, फेल के। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी ये कहेंगे फेल, यानी इसके अंदर एक ज़माना पाया जा रहा है, ठीक है, जी सही, गुजरा वो हुआ जो ज़माना 8 पाया उन्होंने जा अलामत नवमीर में दी हैं, रहा है। उन हाँ, 8 में से तो फिलहाल इनमें कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है। नहीं है, लेकिन अब जाहिर, हमने फेल को जाहिर तो करना है ना, फेल को जी सही सही। शो तो करना है ना, तो उसके हम ये कहेंगे कि बेस के अंदर गुजरा हुआ ज़माना पाया जा रहा है, ठीक है।
जी अच्छा से। उसामा। आगे है उसामा। ठीक है। उसामा, आप बताएंगे कि मुस्नद और मुस्नद इलैह में क्या फर्क है? मुस्नद उसाजी कहते हैं हुक्म को, और मुस्नद हाँ इलैही कहते हैं जिसके ऊपर हुक्म लगाया जा रहा हो। मुस्नद इलैही इसम होता है, हाँ और मुस्नद जो है हाँ। वो इसम भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अच्छा, मंसूब जैसे लाहौरी, तो इसको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं लाहौरी, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये मंसूब है उस्ताद जी, जैसे वो करशियन या इस तरह जो पढ़ा था हमने, हाँ क्या? बगदादीयुन। हाँ ये क्या इसम है। मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? ये इस ये निस्बत कर रहा है मेरी किसी जगह के साथ या किसी चीज के साथ। हाँ, किसी इलाके के साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, और ये बताएं कि मैंने उसने भी पूछा था आपसे कि उसामा मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? सामा उस्ताद जी गैर मुनसरिफ है, इसमें दो असबाब पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये मारुफ है उस्ताद जी, दूसरा ये अदल है इसके अंदर। अच्छा, तो मार्फा है, अदल है। ठीक हो गया, माशा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मस मसाजिद मसाजिद मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? मसाजिद उस्ताद जी ये गैर मुनसरिफ है उस्ताद जी। जी। कौन कौन से सबब पाए जा रहे हैं इसके? एक तो इसमें जो है वो तानीस वाला भी इसमें कह सकते हैं उस्ताद जी, तानीस वाला मस्जिद मुअन्नस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है बेटा। हम ये एक कहेंगे, तो हमने ये पढ़ा था। मफाइलों के वजन के ऊपर है। हाँ, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप अगर ये कर लें कि जमा को दो के काम मुकाम कर लें। हाँ जी उस्ताद वो है जी। ना, एक सबब जो है वो दो का काम मुकाम होता है। यहाँ जमा को आप दो के काम मुकाम भी कर सकते हैं, और नहीं भी करते तो आप कह दें कि जमा है, और दूसरा क्या है, क्या नाम है, फेल के वजन के मफाइल ऊपर। फेल के बराबर। लेकिन वो इसमें तफजील है। फेल नहीं है, इसमें तफजील है। वो मैंने उसकी तहकीक की थी, वो यानी वो आखिरी दर्जा है बिल्कुल उसके ऊपर करने का। तो ये दर्जा जो है ना, यानी जमा वाला, ये ठीक है कि जमा को दो के काम काम कर दे। ठीक ठीक अच्छा। उस्ताद जी। अच्छा, मोहम्मद अरसलान, गैर मुंसिफ किसको कहते हैं? मोहम्मद अरसलान साहब। जी सर जी। जी, गैर मुंसिफ किसको कहते हैं? गैर मुंसिफ, गैर मुंसिफ की तारीफ हाँ। करें। जी, मेरे ख्याल सिग्नल नहीं, यानी क्या आ रहा है। जी, नूरुल अमीन साहब, आप गैर मुंसिफ की तारीफ करें। गैर मुंसिफ किसको कहते हैं? नूरुल अमीन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, कोई साथी जिसको मेरी आवाज आ रही है वो बताए कि गैर मुंसरिफ किसको कहते हैं? उस्ताद जी जो गैर मुनसरिफ, वो अल्फाज जो तनवीन और कसरा वो कबूल ना करें, माशाल्लाह, ठीक हो गया। वो इसम सही है। हो गया। अच्छा। जी जी। हाँ, ये मुस्ताद साहब, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। अच्छा, इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन। हाँ हाँ। मुस्ताद साहब, आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही, समझ कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। जी, इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन में क्या फर्क है? कोई साथी, उस्मान दुरैस साहब, आप बताएंगे? इसमें मुतमक्किन होता है कि जो दूसरे को जगह दे दे ना, और गैर मुतमक्किन होता है कि जो जगह ना दे, तब्दीली ना करे। जी, और साथी को बताओ। मतलब इसमें हाँ मुतमक्किन वो है जो मबनी के मुशाबे ना हो, गैर मुतमक्किन वो हाँ। है जो कि मबनी के मुशाबे हो। अच्छा, तमक्कुन का क्या? मैंने उस्मान दुरैस साहब, तमक्कुन से क्या मुराद है? मक्खन उस्ताद जी। हाँ मक्खन से मुराद है। जी, कोई और साथी बताए, साथी जिसको आता है। जगह देना, उस्ताद जी मतलब जगह देना। मकीन। हाँ, हाँ, जगह।
जगह देना। तो क्या मुराद है कि इसमें मुतमक्किन एराब को जगह देता है, ठीक है, और जी इसमें सर गैर मुतमक्किन एराब को जगह नहीं देता। उस्मान, तो समझ में आ गया अब? जी सर, ये ठीक बात है। है सर। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं मोरब भी इसमें मुतमक्किन है, ठीक है। और जो है ना, इसमें गैर मुतमक्किन वो होता है जो इराब को कबूल नहीं करता, वो मबनी असल के मुशाबे होता है। और मबनी असल तीन चीज़ें हैं: फेल, माजी, अमर, हाज़िर, मारूफ और तमाम हरूफ, ठीक है। और मुजारे के जो दो सीगे हैं, यजरिबना और तजरिबना, यजरिबना तजरिबना, यजरिबना तजरिबन, ये भी मबनी है, ठीक है। उस्ताद जी इसमें अच्छा, एक बात अगर पूछें शामा? कि उस्ताद, ये मबनी असल के मुशाबे जो बात है, ये इसकी समझ नहीं आई कि मबनी पूरा मबनी नहीं है या क्या बात है इसमें, मतलब हाँ ये कोई और किस्म है हाँ, मोरब और मबनी से। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक है पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है। और शामा आप समझेंगे आप आसानी से। एक है हमारी रेंजर, ठीक है। सर जी। हाँ, एक है ये खुरम जमान, क्या उसमें है, खुरम जमान भी है उसमें। तो है तो ये फौजी है, लेकिन ये क्या है, असल में फौज नहीं है ये, ठीक है। हकीकतन यानी उनके मुशाबे है, ठीक है। असल फौज तो वो है ना जो सरहदों पे हिफाजत कर रही है और जो यानी दुश्मन के मुकाबले में खड़ी हुई है। असल तो वो फौज है, ठीक है। तो ये हमारे रेंजर वाले इदारे हैं या दूसरे हमारे इदारे हैं, ठीक है तो ये भी फौज है, यानी इनको कहेंगे, उनके फौज के मुशाबे कहेंगे, लेकिन असल फौज नहीं इनको कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मबनी है, ठीक है। मबनी असल तो तीन चीजें हैं, यानी जिन चीजों के लिए मबनी को वजह किया गया: फेल, माजी, अमर, हाज़िर, मारूफ और तमाम हरूफ, कि ये अथेंटिक हैं। लेकिन उन्होंने, नाफियों ने कहा कि ये अथेंटिक तो हैं, लेकिन कुछ कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जो है ना, वो मबनी तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ मबनी की सिफत पाई जा रही है, ठीक है। जी उस्ताद जी, इसका या ऐसा मतलब वो मोरब का मतलब ये कह हाँ, सकते हैं कि वो मोरब नहीं है। मोरब नहीं है, मोरब नहीं है। मोरब से हट गए हैं और मबनी भी नहीं है, लेकिन मोरब भी यानी कुल मबनी नहीं है, और मोरब तो वो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। जी उस्ताद जी। वो दरम्यान की कैटेगरी वाले हैं जो, वो क्या पढ़ी है सूरत कुरान पाक की, क्या नाम है, किसको याद है? नूरुल अमीन साहब। वो जिसमें ना वो जन्नत में जाएंगे ना वो जहन्नम में जाएंगे, वो दरम्यान में दीवार होगी, कौन सी है? सामने और आराफ आप आ जाए। आराफ, असहाबुल आराफ। आराफ, आराफ, आराफ वाले, हाँ। तो समझे कि ये आराफ वाले लोग हैं, ठीक है। जी उस्ताद जी। अब समझ में आ गया। जी, जलील जी जी, कुरैशी साहब, आपकी जज़ाकल्लाह। मिसाल मिसाल हल होगी। जी जी। हाँ, क्या हल किया आपने? तो अगर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की ऐसी कोई मिसाल हो, जैसे आप स्पेयर पार्ट्स की बता रहे थे उस दिन, जापानी और पाकिस्तानी, हाँ, अरब और मबनी, किसकी? और उससे बता रहे थे फिर मुतमक्किन गैर मुतमक्किन, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की हाँ, नहीं आसान लफ्जों मुझे में समझ नहीं समझ। आया, दोबारा मुझे अब आपकी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कट के आ रही है आपकी बात, आप दोबारा बोलें। आज मैं कह रहा हूँ नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की ऐसी कोई आसान मिसाल आप समझा दे, जैसे आप हाँ फौज और उसके लिए रेंजर्स के लिए समझा रहे थे। हाँ, मुनसरिफ जो होता है, मुनसरिफ को आप मोरब समझ लें, ठीक है। ठीक मुनसरिफ है। को आप मोरब समझ लें, मोरब है ये, क्योंकि जैदुन है। और जो है ना, गैर मुनसरिफ को आप मबनी असल के मुशाबे समझ लें, ठीक है। मबनी ना समझें, लेकिन मबनी के मुशाबे समझ लें, ठीक है। यानी जैसे मबनी जो है ना वो ठीक है। कसरे को और उसको क्या नाम है, तनवीन को कबूल नहीं करता, ऐसे मबनी भी कबूल नहीं करता, ऐसे गैर मुंसरिफ वो भी जो है ना मबनी को और वो भी तनवीन को और कसरे को कबूल नहीं करता, गैर मुंसरिफ, ठीक है। और जो मुंसरिफ होता है वो मोरब है, इसलिए क्योंकि वो कसरे को भी कबूल कर रहा है, वो जबर को भी कबूल कर रहा है, वो पेश को भी कबूल कर रहा है, तो वो तनवीन को भी कबूल कर रहा है, ठीक है। हजरत एक और अब सवाल आसान था सा- जी जी, पूछे। कि हमने गैर मुतमक्कन के अंदर 8 किस्में पढ़ी जिनके उन्होंने मुज़मरात हाँ वगैरह की तफसील बताई, जबकि नीचे जब जी जी, मारफा में जाते हैं तो वो भी मुज़मरात को हाँ। शामिल करता है, जबकि मारफा तो मुतमक्कन हो गया, तो उसमें वो मुज़मरात फिर वो गैर मुतमक्कन के शामिल हो गए, ये कैसे? नहीं नहीं, ऐसी नहीं है बात, वो मैं तो, ये तो खुल रही है जब ये तो देखना। हाँ, ये बात आपकी, वो सवाल है। जब और जैसे जैसे हम चीज की तशरीह करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे सामने चीजें खुल खुल के सामने आती जाएंगी, ठीक है। ठीक जी है। जी। मुज़मरात जो ज़मीरें हैं ये सारी मारफा ही हैं, ये नकरा नहीं है ज़मीरें, ठीक है। हाँ, लेकिन ऊपर ज़मायर तो हम सारी, गैर मुतमक्कन।
غیر हाँ तो मुतमक्किन गैर के मुतम नीचे 8 किस्म देखना। हैं। हाँ देखना, गैर मुतमक्किन का होना जो है ना, ये इस बात की दलील नहीं है कि वो नकिरा हो। ठीक है, गैर मुतमक्किन सही का होना इस बात की दलील नहीं है कि वो नकिरा हो, मार्फा भी हो सकता है। ठीक सही है जी। जी हाँ सही। अगरचे हैं ये सारे के सारे फेल। हाँ माशाल्लाह यार, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह आपसे खुश हो। तो वो फिर नहीं हल हुआ आपसे? जो मोहम्मद जलील कुरैशी कादिम इस्लाम, वैसे कादिमा तो इधर ये इस्लामाबाद। कादिम हाँ इस्लामाबाद, हाँ ये फिक्रा तो इसमिया खबरिया है, क्योंकि हाँ मोहम्मद जलील कुरैशी मुब्तदा है हाँ। और कादिम जो है फेल है। और कादिमा, कादिमा फिर माजी ठीक हो गया। हाँ और हाँ। इस्लामाबाद में रहता है, तो यहाँ पे ये मफूल से कहेंगे। नहीं, इलल इस्लाम, इला हरफ जर अल इस्लाम, इस्लाम अल इस्लामाबाद, ये होगा जार मजरूर। जार मजरूर मिलकर कादिमा फेल के मुतल्लिक, कादिमा फेल अपने मुतल्लिक और फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जलील कुरैशी के लिए खबर। जलील कुरैशी साहब अपने खबर के साथ मिलकर, जलील कुरैशी मुब्तदा और जो है ना इसकी जुमला फेलिया खबर इसकी खबर है। तो जलील कुरैशी अपनी जी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। मोहम्मद जलील कुरैशी साहब इस्लामाबाद की तरफ चले गए हैं। ठीक है। और बिल्कुल। अगर फेल को हम शुरू में लगा दें तो मोहम्मद जलील कुरैशी साहब इस्लामाबाद की तरफ गए। ठीक है। जी चल आपको, आपको लिए आसान बनाते हैं। अच्छा, अकल ततामन, अकल ततामन, क्या आपने खाना क्या खा जी? लिया? नहीं, अकल ततामन या हल अकल हाँ ततामन। हाँ हाँ जी। नाम, तो इसकी तरकीब करें, इसकी कोई तरकीब करे साथी, सबके लिए ये तरकीब, ये क्या बन रहा है? हल अकल ततामन उस्ताद या अकल तताम, अकल हल तो अकल तताम कोई। फेल है। नहीं नहीं, अब तो जिन्हें को ऐसी साहब को कोशिश करने दें, फिर आप देखते हैं। करें आप कोशिश। हल अकल ततामन, क्या आपने खाना खा लिया, इसकी तरकीब करें आप। अकल का तो फेल है और हाँ, तामुन मफूल, तनवीन के साथ ये मफूल है, खाना मफूल हो खाना। गया जी। हाँ हाँ। और ये तो तो खबिया हो गया, फिक्रा जो है नहीं, जुमला फेलिया हो इंशाइया होगा, इंशाइया होगा। ये इंशाइया होगा, क्योंकि इस्तिफहाम में यहाँ सवाल हो रहा गया। हाँ, है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इस्तिफाम के लिए। जी ठीक है, इस्तिफहाम, ये हाल इस्तिफहाम, इस्तिफहाम। अच्छा, वल्लाहि, वल्लाहि ज़रबतु हजरत एक और ज़ैद। की तरकीब थी, वल्लाह ले अदरबन ज़ैदा, कि मैं जरूर जैद को मारूंगा। तो इसमें वल्लाह ये जो है वो हाँ, निदा हो गई, नहीं कसम, कसम वाव हो गई। कसमिया। जी जी। तो हाँ जी कसम हो गई, तो ले अदरबन जो है वो जो है वो ये इसमें ये फेलिया खबरिया या इसमें खबरिया होगा। हाँ। नहीं, ला, ला अजरी बनना होगा, ला अजरी बनना। ठीक है। जी वल्लाही जी मैं सही जैद है। को जरूर बजरूर मारूंगा। ला अदरी बनना फेल, और जो है ना मुतकल्लिम का जो ज़मीर है इसके अंदर वो फाइल, और जैद मफूल भी, फेल अपने फाइल मफूल भी, और जो है ना के साथ में जो है वाव, जो है ना वाव कस्मिया जो है ना, वाव हरफ जर, और लफ्ज़ अल्लाह मजरूर, जार मजरूर के साथ मिलकर फेल के मुतल्लिक, फेल अपने फाइल मफूल भी और मुतल्लिक के साथ मिलकर जुमला इंशाइया हुआ। फिर ये जुमला खबरिया इंशाइया हो गया कि अल्लाह की कसम जी मैं सही। जरा जैद को जरूर बजरूर मारूंगा।